Good morning, students. This is science video. We were doing periodic test, and some of you have done that as well, and some exercises you have done, which was take the right option, fill in the blanks, and name the following in your textbook, and you have shown it to me. But the question answers were not done by you. That's why I have given you as a homework. So today I am checking that question answer of the periodic test which we have done in the previous video, and today we are going to start with the chapter number 5 activity, that is on page number 45 and 46. So open your book and come to the page number 45. You will see a picture of a boy who is throwing stones on hive. So hive मधुमक्खी का छत्ता होता है, जो उसमें पत्थर फेंकोगे तो क्या होगा, हानी भी उधर इधर उधर भागने लगेंगी, और भागेंगी तो अगर आपको मिल गई तो फिर आपको काट भी सकती हैं. तो काटने के बाद what you will do, what are the steps to be taken to cure that bite or sting, clear? तो वो आप फर्स्ट एड वहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है, यू हैव टू राइट दोज स्टेप्स, what all the first aid you will do after biting the insect or the honeybee, clear? So you will write down by your own कि आप क्या क्या करेंगे. मैंने आपको फर्स्ट एड में पढ़ाया भी था कि इंसेक्ट्स जब काटते हैं तो क्या किया जाता है, मतलब फर्स्ट एड में क्या किया जाता है. वो तो बात की बात है, डॉक्टर आएगा एंड ऑल दैट. डॉक्टर से पहले क्या करते हैं आप, वो लिखना है, वो स्टेप बाय स्टेप लिखना है, क्लियर? तो वो स्टेप बाय स्टेप आपको वहाँ पे डायग्राम के जस्ट साइड में ही आपको ब्लैंक दिए हुए हैं, वहाँ पे लिखना है, क्लियर? सो दिस एक्टिविटी विल बी डन टुडे इटसेल्फ. एंड बी पार्ट इज टेक द एक्शन यू शुड फॉलो एंड क्रॉस द वन यू शुड नॉट. ऐसे एक्शंस को टिक करना है जो आप कर सकते हैं या आपके लिए सही है, और ऐसे एक्शंस को क्रॉस करना है जो आपके लिए बहुत ही खराब है और गलत है, क्लियर? तो ये सारे क्वेश्चंस, these questions I am going to explain it one by one, and you have to just understand these questions in the video, and after that you will just do your activity and show it to me in the WhatsApp. And after seeing this video you will send the question answers which I have given you as a homework, clear? So let's begin with the activity question, and after finishing this video you will send the question answers to me, clear? And then do your activity part. Okay, so this is the picture I'm talking about. A boy is throwing stone to the hives, and if the insect sting on it or bite him, what will be the action to be taken after biting the insect? You have to write these steps, clear? After this, when you come to the page number 45, you will see there are some options are given which you have to read them carefully, and then you have to take them whether they are right for you or whether they are wrong for you, clear? If they are good for you, then you will tick in front of the option, and if it is wrong for you or not good for you, then you will cross in front of that statement, clear? Do not put coins and marbles into your mouth. Do not, कॉइन्स और मार्बल्स अपने मुंह के अंदर नहीं डालना चाहिए. तो दिस इज ट्रू और नॉट, दैट यू हैव टू डू इन फ्रंट ऑफ दिस स्टेटमेंट. पुट योर फिंगर इनटू अ प्लग पॉइंट. प्लग पॉइंट पे फिंगर डाल देनी है, सही है या गलत है, यू विल जस्ट मार्क ओवर हियर. प्ले विथ सीजर एंड नाइव्स. यू हैव टू प्ले सीजर एंड नाइफ. सीजर के साथ और नाइफ के साथ खेलना चाहिए. So you have to do by your own. Do not play with the burning matchstick or candles. Burning matchstick या फिर कैंडल के साथ नहीं खेलना चाहिए. Do not, ठीक है? तो वहाँ बताइएगा. Disobey traffic rules. Traffic rules हमें बिल्कुल मानने नहीं चाहिए. So do not walk on the footpath. Footpath पे चलना भी नहीं चाहिए. So you have to just mark the right one and क्रॉस द रॉन्ग वन, क्लियर? हॉर्ट्स के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे कुछ दो,
जो आपको खुद से ही देने हैं, लेकिन आप लोग गूगल करके ही देते हैं हमेशा। तो अपने से थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ये चैप्टर के ही बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अगर चैप्टर के बेस्ड क्वेश्चंस हैं तो दैट मीन्स आपको आने चाहिए, या तो आपने फिर चैप्टर ढंग से नहीं पढ़ा है, तभी आपको नहीं समझ में आ रहा है ये चीज़ें। सो जस्ट अगर हॉट्स क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, आज के दिन में नहीं आ रहे हैं, तो पहले 5 चैप्टर का वीडियो देखिए और फिर उसके बाद समझिए कि यहाँ पे पूछने की क्या कोशिश कर रहा है। देन यू विल गेट द आंसर बाय योर ओन। क्लियर? सो फर्स्ट वन, व्हाई नायलॉन क्लोथ्स आर अवॉइडेड ऑन दिवाली। नायलॉन क्लोथ्स क्यों नहीं पहने जाते दिवाली टाइम पे? ऑब्वियस सी बात है, दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, और उसमें क्या होता है, फायर का इस्तेमाल किया जाता है दिया जलाने के लिए, कैंडल्स जलाने के लिए, पटाखे जलाने के लिए, है ना। तो फायर के साथ और नायलॉन के साथ, नायलॉन इज अ सिंथेटिक क्लॉथ, सिंथेटिक क्लॉथ्स और फायर का बेटर कॉम्बिनेशन होता है। मतलब अगर जल्दी आग पकड़ती है तो इस वजह से हम नायलॉन क्लॉथ्स नहीं पहनते दिवाली में। अब समझ में आ गया? मैं तो आंसर भी पूरा पूरा बता दिया है। नाउ यू हैव टू फ्रेम योर आंसर इन इंग्लिश एंड डू इट। इतना कर सकते हैं आप। डू योर पेरेंट्स चेक डेट ऑन द रैपर ऑफ मेडिसिन? व्हाट काइंड ऑफ डेट डू दे चेक? आपके पेरेंट्स हमेशा आप देखते होंगे कि मेडिसिन के पैकेट्स में या फिर मेडिसिन की बॉटल्स में उसमें एक डेट चेक करते हैं। वो डेट क्या होती है? वो डेट यहाँ पे आप लिखेंगे कि कौन सी डेट चेक की जाती है। ठीक है? सो यू हैव टू मेंशन दैट डेट। डेट नंबरिंग से नहीं पता है, कुछ नाम होता है उस डेट का, वो आप लिखेंगे। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस में है, रोहन is playing with his friends in school playground. Suddenly one of his friend faints and fall on the ground. What should Rohan do in such a situation? रोहन अपने फ्रेंड्स के साथ प्लेग्राउंड में खेल रहा है, उसके फ्रेंड को अचानक से चक्कर आ गए और वो बेहोश हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। तो रोहन इस सिचुएशन में क्या करेगा वो आपको करना है। He should run away, वो भाग जाएगा। He should go and call the teacher first, वो सबसे पहले दौड़कर टीचर को बुलाने जाएगा। He should first give him first aid and then let the teacher know about the accident. पहले वो फर्स्ट एड देगा बच्चे को और फिर उसके बाद टीचर को बुलाने जाएगा, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। Just tell me the answer, what you will do in this situation. Let's enhance our life skill. So take the points you should keep in your mind while giving first aid to an injured person. किसी को अगर चोट लग गई है तो आपके दिमाग में क्या बातें रहनी चाहिए फर्स्ट एड देते समय? ठीक है? You should have full knowledge of things available in the first aid box. फर्स्ट एड बॉक्स में जितनी भी सारी चीजें हैं उनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। You should panic on seeing the injured person. आप चीखने चिल्लाने लग जाएंगे, या फिर आप जब चोट वाले इंसान को देखेंगे या उसकी चोट को देखेंगे तो चिल्लाने लगेंगे या फिर परेशान हो जाएंगे। ठीक है? पैनिक का मतलब होता है एक तरफ से घबराहट होना, या फिर आप खुद ही चिल्लाने और चीखने लग जाते हैं। दैट इज कॉल्ड पैनिक। यू शुड क्राउड अराउंड द इंजर्ड पर्सन। इंजर्ड पर्सन के चारों तरफ आप भीड़ बना देंगे चिल्ला चिल्ला कर। यू शुड नो हाउ टू गिव फर्स्ट एड। आपको ये तरीका पहले पता होना चाहिए कि फर्स्ट एड किस तरह से दिया जाता है। यू शुड नो द यूजेस ऑफ थिंग्स इन द फर्स्ट एड बॉक्स। आपको जितने भी फर्स्ट एड बॉक्स में जो भी आप कर रहे हैं उनके यूजेस पता होने चाहिए। जैसे अगर गॉज आपने ये इस्तेमाल किया है तो गॉज कैसे इस्तेमाल करना है, या फिर एक लोशन को किस तरह से लगाना है, पहले क्या लगाना है, डेटॉल लगाते हैं या फिर पहले चोट धुलते हैं, कुछ ऐसे है ना। चोट को धुला जाता है, फिर उसके बाद डेटॉल, फिर एंटीसेप्टिक लोशन लगाकर फिर गॉज बांध दिया जाता है, पट्टी बांध दी जाती है ना। तो वही चीज़ है कि तो इनमें से एक कोई आंसर नहीं है, 2-3 आंसर हैं। सो यू विल जस्ट टेक जो आपको सही लगता है। क्लियर? So this is all about the activity. If you have any doubt, then you can ask me in the WhatsApp and show it to me today, this activity in the classroom, means in WhatsApp. Okay? Thank you so much.